मैं तेरे को 3 चीज़ दिखाऊँगा क्या कि जैसे फॉर अ पर्टिकुलर मैंने अपॉर्चुनिटी को खोला, पर्टिकुलर किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोला तो उसके अंदर 3 चीज़ें अभी तू देखेगा कि जब मैं पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा तो कैसे कैसे अपडेट होगा। सो ये सारी चीज़ें देखेंगे। देख 3 वे हैं। ये दिस इज़ विनेश सिंह है। अगर मैंने लिखा चौहान, विनेश सिंह चौहान, इस वाले कंपोनेंट से एडिट नेम से अगर मैंने अपडेट किया तो ये अपडेट हो गया, लेकिन हियर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर तू डिटेल सेक्शन में भी जाएगा तो देखेगा कि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इसका नेम, जो भी है विनीत सिंह चौहान है। चौहान मैंने रिफ्रेश किया इसलिए हो गया। अगर रिफ्रेश करूँगा अभी तो विनय सिंह चौहान आएगा। ठीक, चौहान देखना। देख विनीत सिंह चौहान हो गया, लेकिन अगर मैं विनीत सिंह का हटा के अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम शैलेंद्र मिश्रा करता हूँ, शैलेंद्र मिश्रा किया। ठीक, अगर मैं अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट हो गया है बैकएंड में। अगर तू अबेक्स में जाके देखेगा डेटाबेस में तो ये अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी के नेम पे अपडेट नहीं हुआ और यहाँ पे ऑनर के नेम पे अपडेट नहीं हुआ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल फाइंड दैट दिस नेम इज़ विनीत सिंह हैज़ चेंज दैट इट बिकम द शैलेंद्र मिश्रा फॉर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। It becomes the Shailendra Mishra for this particular record. You can see that there is another way. For example, if I change this name to Santosh, then if I click is a update, then you will find that this update is updated here and updated here, and with that we got this Toastmaster. And third one is third also edit button, Santosh Pyasi, Santosh Kumar. If there is a field of the amount which is a 767 is here. Now if I update it to 420 kind of, or stage is a close one, then if I click to update, so this all the things are updated here. You can see that this is the Santosh Kumar Pyasi 420 and its stage is close one. It's working fine. Why here not show the toast message? Actually I don't included the toast message here, but when I click the update button, it not directly show in the UI. Here I added the toast messages, and when I click to update, this is also reflect in the UI. And in the third case, you will find that this is fast, and there is no server side connection is required for this updation things. So I will be show what is the code difference between them and how I have done this all the things. So start with this one is the opportunity edit. So the first we will discuss this is opportunity edit one. This is component how I created and how it is working. So in this case I use the lightning card, in HTML part I use the lightning record edit form. In lightning record edit form I use the record ID. Yeah, this is the main component. How what its responsibility I will tell you in this case. And I use the object API name. I know this is a lightning record edit form and they needed the object API name, and this is a lightning input field and here needed the field name. I done the things is here, that the name, amount and a stage name, this is are the API name whatever we required. And in the submission of in the closing of and there I created a button which I have the type equal to submit and label equal to update and variant equal to brand. These things is I know what I
don't know in the what I have learned from this is that the record slash id, what is its dependency, and it open that record which require to present here, which require to open here. So it is responsible for fetching that record id. It fetch the this record id value inside of this lightning input field. Earlier what I have did that I use the value here. If I or show my previous one code is that if you are see the previous code, पुरानी कोड देखेगा तो you will find that the for the getting the name I will put here name equal to name, and for the getting the value of the getting the value of that in lightning input I use the opportunity dot name. That means from the opportunity dot name you have to find out the value and you have to see here, but you have to present here, present in this input box. But in this case this already which is showing you lightning input field, I have just mentioned the name and I doesn't need to represent any name attribute and the value attribute will which will show the value of the opportunity, particular data opportunity. Here is what a record id, and I mentioned this is a record id. And on success what I have to do, handle the success event. On error, handle the error event. When the submission when user is clicked on this button submit after editing, this is or if the error is if the execution is succeed or the successfully, then on success will handler success will run. If anything goes wrong, then on error will run. So what I have did in the JS for the getting the current record ID, I use here the annotate API for the getting that this component is where this component has opened, and for that I use the annotate API and record ID. Handler success or handler error I just use for the displaying the toast message. How to display the toast message? This dot dispatch event, and inside of the dispatch event we have to create the new toast message, new toast event, and inside of that we have to mention the three attribute. One, title, message or variant is a success, and here title, message or variant is a error. So the handle success and handle error is for the toast responsibility is that, right? This is the first one code what is required for the this one code contribution. There is what are the things are required for this one contribution. If I write and there is a one prevention is that if I write anything string other than number, so it will prevent me to updating that is success message, right? This is the third one component. If I talk about the first one and what are the drawbacks in the first one, that's why I use the second one. I will show to you that one also. Yeah. So for the first one component, for this edit name component, I have did in the UI part. If you ask me the UI part, sorry, it is a previous one is that this one is a that one. And what I have did here, this I created the lightning card and I embedded the lightning card here. I just created a one input field which is show here that this one input field and the lightning button. What are the functionality I have written down this in that. If I talk, this is for the spinner lightning spinner. If true, this is for the spinner, and inside of this what I have did that I created a one
one object, as object is a opportunity. You can also mention that this is a as object and colon opportunity. So I created a one opportunity object, and here I have labeled the name. It should be name. It should, that's why it is reflected here, the name. And here I created two additional variable. One is a name and the value. Name is for the name variable, store the name. This value is stored in the name variable, and whatever the value will display initially inside of the lightning input is the value attribute is responsible. And this from where this value is getting, this opportunity dot name is responsible for the providing this is opportunity responsible for the providing the name of that particular value. And simply if I click to update, then on handler update will responsible. So it is like it. I will click on this update button. First I will edit it. What are the flow I will teach you that. First is the wired method is run. Then from wire I call this from wired method firstly I have get this is a record ID from the JS file, and from this JS file I will call the wire method. If I get the record ID, then I try to get the all detail of the opportunity for the wire method, and from the getting of the all the opportunity from the wired method I will update this particular attribute object attribute opportunity. And the if after updating it, if user will input if user will change anything here on change handler, then I will save that on change handler into this opportunity things. So that's why I created this on handler event. If user will click update here, so then what I have to do that on click of the handler or update here, I will call to Apex, and I will update whatever the record is provided by the user. Have you got it that what is the flow, exact flow of this code is? So what are the exact flow is that when currently opportunity record पेज रिकॉर्ड आईडी लेते थे और फिर अपेक्स में गेट कॉल करके उससे अपॉर्चुनिटी से डेटा LWC में लाते थे और उसको एडिटेबल बनाने के लिए लाइटनिंग इनपुट में लेते थे और यूज़र चेंज करता था डेटा। तो अपडेट बटन को क्लिक करने पे अपेक्स को कॉल कर देते थे और सेल्सफोर्स अपॉर्चुनिटी अपडेट कर देता था, लेकिन अपडेटेड वैल्यू रिकॉर्ड पेज पर दिखाई नहीं देते थे। सो इससे बचने इसके लिए ये चीज़ करते थे। अगर तेरे को इसका कोड देखना है तो मैंने HTML का कोड समझा दिया, और अब देख किसका कोड, अपेक्स का कोड समझ के पहले अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी मिल जाती तो कैसे अपडेट करते थे। सो देख, अगर हमें क्या कोई भी रिकॉर्ड आईडी मिल गई पर्टिकुलर गेट अपॉर्चुनिटी के लिए, हम क्या करते थे, रिकॉर्ड आईडी मिल गई तो हम पर्टिकुलर उस सिलेक्ट आईडी एंड नेम फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी वेयर द रिकॉर्ड आईडी कॉलन लगा के वेरिएबल बाइंडिंग कर देते थे और लिमिट इक्वल टू 1 ही आएगी। लेकिन हम इसको क्या अपॉर्चुनिटी रिटर्न टाइप रहता था, इसका रिटर्न टाइप क्या अपॉर्चुनिटी रहता था। और इसको क्या किए हैं, और इनेबल्ड किए हैं, मतलब दैट मीन्स कैचेबल इक्वल टू 2, और क्योंकि ये वायर्ड मेथड से कॉल होगा तो इस कैचेबल इक्वल टू ट्रू कर दिया है और इनेबल कर दिया है, दिस थिंग्स कर दिया है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड आईडी आए तो मुझे ये डेटा चाहिए। लेकिन अब देख, मुझे कोई अपडेटेड न्यू वैल्यू देगा तो मुझे उसको करंट वाले अपॉर्चुनिटी के अंदर अपडेट भी करना है, तो वो कैसे करूँगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी अपॉर्चुनिटी ओप्स इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटी, ये मैंने क्या करूँगा, इससे ये देख, इससे पहले मैं 2 एट्रीब्यूट लूँगा, जो करंट आईडी है और करंट जो अपडेटेड नेम है और जो आईडी है वो दोनों लूँगा। और अपडेटेड होने के बाद फिर मैं एक नया अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। अपॉर्चुनिटी इक्वल टू
इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटी, आईडी इक्वल टू आईडी दे दूंगा, कॉमा नेम एट्रीब्यूट को दे दूंगा। और यहाँ मैं करूँगा अपडेट OPP, क्योंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, इसमें रिकॉर्ड ये ऑलरेडी है, इसलिए अपडेट किया हूँ। अगर ये अपॉर्चुनिटी का ये रिकॉर्ड नहीं होता तो मैं यहाँ इंसर्ट करता। सो हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट इन द Apex part, and I told the JS part. I already told you the HTML part. Now we have to go with the JS part. JS part में क्या, मैंने उन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट किया और LWC कंपोनेंट में API और वायर्ड को कॉल किया। API मैंने पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड पेज पे जो कंपोनेंट जिस पेज पे खुला होगा उसकी रिकॉर्ड आईडी फेच करने के लिए किया। स्पिन मैंने लगाया है, स्पिन को 2 कर दिया, स्पिन वाला कॉन्सेप्ट छोड़। स्पिन में लेकिन दिस कीवर्ड नहीं लगाया था तो वो पूरा फेल करता है। देख वायर्ड मेथड कैसे कॉल किया और विद द एट्रीब्यूट, ये देख ले, एनोटेड वायर्ड लिखा और जो फंक्शन का नाम है वो लिखा, और जो एट्रीब्यूट उधर यूज़ किया हूँ वो एट्रीब्यूट में वैल्यू डाला। ये मैंने बता चुका है, ये जावा का JS का एक एनोटेट के अंदर डॉलर से ही पास करते हैं वेरिएबल को, जो ये वेरिएबल है डॉलर से ही पास करते हैं, नॉर्मल JS का नहीं चलता इसमें, ठीक। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, वायर्ड मेथड बनाया, वायर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ्स डॉट गेट, इसके अंदर डेटा और एरर आया, और इस डेटा को क्या किया, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के अंदर असाइन कर दिया। और नोट रखना, अगर तूने इस कॉलन को हटा दिया ना तो एरर आता है, बोलता है नेम कंपोनेंट में एरर आता है कि नेम फील्ड नहीं फाइंड है। सो ये चीज़ मैंने पहले भी एक डिस्कस की थी, इसको नहीं हटाना है, इसको बल लगे तो एज टाइप एज ऑब्जेक्ट इक्वल टू अपॉर्चुनिटी एज ऑब्जेक्ट को लिख के वो कर सकता है, इसको एक्सपेंड कर सकता है। और इसके अंदर क्या किया, अपॉर्चुनिटी का डेटा डाल दिया, और अगर एरर आया तो एरर वाले कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, ठीक। अब देख, अब ऑन हैंडलर, अब देख, अब इसको मेन चीज़ आती है, जब यहाँ चेंज करूँगा तो वो चेंजेस JS की अपॉर्चुनिटी पे कैसे दिखेंगे। उसके लिए क्या किया, पहले मैंने 2 वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, देखिए नेम वाला और वैल्यू वाला। नेम वाले वो ये नेम का जो एट्रीब्यूट रखना, इधर पे जो वैल्यू लिखना है राइट साइड में, वो API नेम ही लिखने की कोशिश करना। सो देखेगा तू 2 वेरिएबल बनाए, कॉन्स्ट फील्ड नेम इक्वल टू, जब तू किसी फंक्शन के अंदर लिखेगा ना तो कॉन्स्ट नाम लिखना ज़रूरी है वेरिएबल पे, ठीक। फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाएगा, अगर तू यहाँ पे वेरिएबल बनाया सो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर बनाया तो तेरे को लिखना ज़रूरी है। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम करेगा तो इससे क्या आएगा, ये API नेम क्या होगा, इस नेम वाले एट्रीब्यूट से इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद वैल्यू के लिए तूने क्या किया, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में आ जाएगी। फिर दिस डॉट अपॉर्चुनिटी को तू एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने पे यहाँ इस फील्ड नेम के कॉलन लगा के क्या कर देगा, तू वैल्यू कॉलन लगा के दे देगा। तो ये अगर अब फील्ड में कुछ भी अपडेट हुआ, और इसी तरह से अपडेट करते हैं, अगर मैनुअली कर रहे हैं ना तो इसी तरह से अपडेट करते हैं, और फील्ड में कुछ भी अपडेट हुआ वो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर रिकॉर्ड पे आके अपडेट असाइन हो जाएगा, ठीक। जब तू कुछ अपडेट किया और इसके अंदर आके अपडेटेड हो गया तो अब तू उसको सर्वर तक पहुंचाएगा ऑन क्लिक हैंडलर से। ऑन क्लिक हैंडलर से मैंने जब सर्वर पे कॉल करने गया तो इसे स्पिन लगा दिया, और जब फाइनली इससे रिटर्न आया फाइनली से तो इस स्पिन को हटा दिया। इससे क्या हुआ, और मैंने इस पे कॉल कर दिया क्या, अपडेटेड अपॉर्चुनिटी करके जो फंक्शन था इसी को कॉल कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, रिकॉर्ड आईडी दिस डॉट रिकॉर्ड आईडी पास कर दिया, और अपॉर्चुनिटी का नेम पास कर दिया। अब देख, पैरामीटर भी पास करने के लिए ना मैंने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में पैरामीटर पास किया है, मैंने डायरेक्ट कॉमा में नहीं लिखा है, जेसन फॉर्म में लिखा है। और यही चीज़ें मैं वायर्ड के अंदर भी बता रहा था कि वायर्ड के अंदर जब मैंने यहाँ से डेटा पास किया है ना, पैरामीटर वो जेसन फॉर्मेट में किया, रिटर्न टाइप भी जेसन फॉर्मेट में ही आया है, देख। अब देखिए इसके अंदर लिखा, और फिर इसके बाद डॉट देन अगर अपडेट हो जाता है तो
डेटा इंसर्ट हो गया है, अगर अपडेट नहीं होता तो ये बता देता है कि स्पिन को ट्रू कर दिया, एरर आ गया। तो ये चीज़ें कर दिया। अब देख इसके कारण से क्या हुआ, दो चीज़ें तू देखेगा, डेटा गया, अपडेट हुआ, और अपडेट होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो ये क्यों नहीं किया, जेएस में जाके वो डेटा अपडेट, सॉरी अपेक्स के डेटाबेस में जाके वो डेटा अपडेट हो गया है, लेकिन वो इधर नहीं रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। क्योंकि एक तो देख, वायर्ड जो वाली मेथड को हमने कॉल किया था, वायर्ड मेथड को जो मैंने कॉल किया था, ये मैंने पहले ही कॉल कर दिया था इस वायर्ड मेथड को, और वही डेटा मेरे पास अपॉर्चुनिटी के अंदर है, और वही डेटा है और वही चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है ये, और यही अपॉर्चुनिटी का डेटा ये डिस्प्ले कर रहा था। अब मैंने अपडेट कर दिया अपॉर्चुनिटी को, लेकिन उसके पास नहीं है, तो मतलब ये रिफ़्रेश करना पड़ेगा ये वायर मेथड को, और उसके बाद क्या कि एक चीज़ हो गया, ये वायर्ड मेथड को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैंने वायर्ड मेथड को कॉल कर दिया, सो फॉर एग्जांपल मैंने किसी वायर्ड मेथड को रिफ़्रेश करने के लिए कॉल कर दिया, सो इस वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन, ये रिफ़्रेश नहीं होता है। इसके लिए नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है सेल्सफोर्स के इस वाले सेक्शन को कि इस सेक्शन को अपडेट, डिटेल सेक्शन को अपडेट कर। तो वही काम मैंने किया है जो थर्ड वन वाला है। थर्ड वन वाला का वर्कफ्लो मैंने समझा दिया था। अगर मैंने संतोष कुमार लिखा, अभय लिखा, फॉर एग्जांपल इफ़ आई यूजेस अभय, सो इफ़ आई क्लिक हियर, देन अभय अपडेट हो जाएगा। ये अभय, सॉरी फर्स्ट वन कंपोनेंट से यूज़ किया ना अभय, तो इसीलिए अपडेट हो गया, लेकिन इधर शो नहीं कर रहा। सो अगर मुझे यहाँ अभय त्रिपाठी लिखता हूँ, देखिए यहाँ भी अपडेट किया, यहाँ अपडेट हुआ, यहाँ अपडेट हुआ, तो ये कैसे हुआ। तो अब देख इसमें क्या किया हूँ, इसमें HTML का पार्ट वही सेम है, इसमें भी मतलब HTML का पार्ट सेम है, मेन चेंजेस आए और जो अपेक्स का पार्ट है वो सेम है। मेन चेंजेस आए हैं जेएस में दो चीज़ें आई हैं, और इसमें टोस्ट मैसेज भी ऐड किया हूँ। तो टोस्ट मैसेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है टोस्ट मैसेज के। इसमें रिफ्रेश अपेक्स का यूज़ किया हूँ, और नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल का यूज़ किया हूँ, नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल का यूज़ किया हूँ। तो लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API के अंदर है नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल, ये इसका यूज़ किया हूँ। तो किया कैसे हूँ देख, पहले दो चीज़ें समझ कि रिफ्लेक्ट अपेक्स कैसे काम करेगा और नोटिफाइड वाला कैसे काम करेगा, ये दो चीज़ें समझ। तो पहले रिफ्लेक्स अपेक्स को समझ। तो रिफ्लेक्स अपेक्स के लिए क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक। नॉर्मल फ्लो क्या होता था कि जब मैंने अपडेट किया ना, अपडेट के बाद वो मैं ये वायर्ड मेथड को नहीं कॉल करता था, यहाँ पे करूँगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया वायर्ड अपॉर्चुनिटी, और जब मैंने वायर्ड अपॉर्चुनिटी वाला एक वेरिएबल बनाया, तो जो भी रिज़ल्ट आया वहाँ से वायर्ड मेथड से, तो उसको पहले इस वाले अपॉर्चुनिटी के अंदर, वायर्ड अपॉर्चुनिटी वेरिएबल के अंदर पूरा स्टोर कर लिया, कंप्लीट स्टोर कर लिया। मतलब जो भी उसके आया है, ये कोई ना डेटा, ये पूरा स्टोर कर लिया। और इसको स्टोर करने के बाद, इस वाली वैल्यू को स्टोर करने के बाद, फिर मैंने क्या किया, जो रिज़ल्ट आया था उससे ये कॉन्स्ट डेटा एरर को लिया, और इस यहाँ पे अगर कॉन्स्ट नहीं लिखेगा तो एरर आएगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था तेरे को कि अगर किसी भी अपेक्स के जेएस के अंदर कोड लिख रहा है, तो वहाँ कॉन्स्ट लिख देना या कोई वेरिएबल का नाम लिख देना, तो एरर आता नहीं। तो यहाँ कॉन्स्ट डेटा कॉलन एरर लिखा, और रिज़ल्ट और सारी चीज़ें वही रहने दिया। अब चेंजेस कहाँ, वो ऑन क्लिक हैंडलर से जब तूने पहले इसको कॉल किया कि हाँ अपॉर्चुनिटी, सॉरी अपडेटेड अपॉर्चुनिटी को नेम और ID देके सेंड किया, तो फिर उसके बाद डॉट देन आता है। यहाँ पे देन मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं, ये चीज़ें मेरे को अभी पता चले। डॉट देन लगाया, फिर उसके बाद यहाँ लिखेगा रिफ्लेक्स अपेक्स, और जो वेरिएबल तूने कम्प्लीटली बनाया था कि ये वाला डेटा मुझे अभी डेटाबेस से ला के दो, ये वाली वायर मेथड फिर से चलेगी, और ये वाला जो डेटा है वो फिर से आएगा। तो रिटर्न रिफ्लेक्स अपेक्स कर दिया। तो इससे क्या होगा
कि अपडेट हो गया, जैसे मेरा सेल्सफोर्स में अपडेट हो जाता था और फिर सेल्सफोर्स में मैं डेटा नहीं लेके आता था जेएस में। तो उसके लिए क्या किया, वायर्ड अपेक्स ने वायर्ड ये रिफ्लेक्स अपेक्स ने यहाँ पे रिटर्न रिफ्लेक्स अपेक्स को कॉल कर दिया। उससे क्या होगा, जो अपडेटेड है डेटा वो आने लगेगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेगा, और फिर उसके बाद तू देखेगा कि अब इसके बाद भी इशू सॉल्व नहीं होता है। देख, अगर मैंने इसको सेव किया, ठीक, और अपडेटेड अपेक्स अब आने लगेगा, जैसे अभय त्रिपाठी लिखा है, मैं अभय तिवारी लिख देता हूँ, अभी तिवारी लिख देता हूँ। तो इसको तो पहले रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करता हूँ। सो मैंने शायद इसको डिप्लॉय कर दिया था, ठीक। अगर मैं इसको अभय तिवारी करता हूँ, देखा होगा वही वाला कंपोनेंट है, तिवारी करता हूँ। सो व्हेन आई क्लिक टू तिवारी तो उस मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं आया। मे भी डिटेल अभी फैच करेगा तो ये सही कर दे, तो ये सही कर दिया। लेकिन अगर डिटेल फैच किया होता पहले तो ये अपडेट नहीं करता। सो रिफ्लेक्ट अपेक्स लगाने के बाद भी बात नहीं बनी थी, तो फिर इसके जगह पे फिर आया मेरा काम, आया कौन सा, नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल। अब सेल्सफोर्स को बताएंगे, नोटिफाई करेंगे कि रिकॉर्ड पेज नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल, अपडेटेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो उस केस में देख, अब इस केस में क्या होगा जब हम इसको नोटिफाई करेंगे। सो जैसे मैंने बोला कि वो फ्लो नॉर्मल चलने लगेगा। तिवारी की जगह शुक्ला यूज़ करता हूँ मैं, शुक्ला। सो देखिएगा तो इधर भी अपडेट हो गया, इधर भी अपडेट हो गया, इधर भी अपडेट हो गया, सब जगह अपडेट हो गया। तो ये किया है, अब एक दिन लगा के मैंने उसको हैंडल किया। अब उसके बाद अब देख, सेल्सफोर्स से जब रिटर्न आ गया कि ये वाला वाइड अपॉर्चुनिटी वाला वेरिएबल अपडेटेड वाला आ गया, अब उसके बाद सेल्सफोर्स को अपडेट करते हैं कि हमारे नोटिफाई करते हैं रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल है। उसके लिए मैंने फिर कहीं कुछ नहीं किया है, बस उसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किससे किया है, लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड API से इसको इंपोर्ट किया। और फिर इसके बाद क्या किया, अगर फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, यहाँ पे लगा दिया डॉट देन, और डॉट देन में क्या कर दिया, रिटर्न नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल जो वहाँ पे लिखा था। और इस यहाँ पे रिकॉर्ड ID को ये फिर से पास कर दिया। तो ये इसको बता दिया कि ये रिकॉर्ड ID ये अपडेट हो गया है, तो उससे वो ले लेगा डेटा और फिर ये कम्प्लीटली काम करने पड़ता है। अब तू यहाँ पे भी देखेगा एक चीज़, अगर मैं रिफ्लेक्स को नहीं यूज़ करता हूँ, फिर सिर्फ नोटिफाइड रिकॉर्ड अवेलेबल को ही यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और नोटिफाइड को ही बस अवेलेबल को यूज़ करता हूँ, तो यू विल फाइंड द समथिंग डिफरेंस कि अपडेट नोटिफाई सब चीज़ों में अपडेट हो जाता है ये। लेकिन जो पुराने कंपोनेंट हैं, जैसे ये वाले पहला वाला कंपोनेंट और सेकंड वाला कंपोनेंट, यहाँ पे देख ये है सारी चीज़ें। यहाँ पे ये इसको शुक्ला की जगह अब है मिश्रा कर देता हूँ, मिश्रा किया। ये वाले कंपोनेंट में शुक्ला है, इधर भी शुक्ला है। देखना अगर मैं अपडेट किया तो इधर मिश्रा हो गया लेकिन इधर शुक्ला ही है, क्योंकि ये पुराना अपॉर्चुनिटी उसके अंदर लेके बैठा है। वायर्ड वाली मेथड ये वाला अपना अलग कंपोनेंट के अंदर लेके बैठा है। यहाँ मैंने मिश्रा किया, यहाँ हुआ लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो इसके लिए भी लिए कि उस वायर्ड को मेथड को दोबारा कॉल हो तो रिफ्लेक्स अपेक्स का ही यूज़ करते हैं। तो इसके बाद देखेगा अब ये प्रॉपर काम करेगा। तो रिफ्लेक्स अपेक्स और इसका काम समझ गया है, ठीक। ये नोटिफाई करता है कि फिर से अपडेट हो गई है वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर को लेके आओ। फिर इसके अंदर डॉट देन लगा के अगर मैसेज सक्सेस हुआ तो कंसोल, मैंने यहाँ टोस्ट मैसेज का एक मेथड बना दिया और इसी तरह कैच मेथड का भी एक मैसेज बना दिया और स्पिन लगा दिया। टोस्ट मैसेज में क्या एक मैसेज मेथड बनाया है, डिस्क लगाना मत भूलना नहीं तो एरर आएगा। टोस्ट मैसेज में टाइटल मैसेज और वेरिएबल दिया है और टाइटल यहाँ पे क्या किया है,
अब देख न्यू टोस्ट मैसेज, और इसके अंदर भी पैरामीटर के फॉर्म में वेरिएबल जेसन फॉर्म में वैल्यू पास किया है, टाइटल, वेरिएंट और मैसेज, और फिर दिस डॉट डिस्पैच इवेंट को शो कर दिया है। तो इस तरह से ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। अगर कुछ पढ़ना चाहता है सो यहाँ से देख के समझ सकता है। हाँ, अभी मतलब पहले क्या था, अफेक्स अपडेट होता था डेटाबेस में, LWC वायर से रिफ्रेश करता था और तुम्हारा LWC अपडेट होता था। बट सेल्सफोर्स रिकॉर्ड पेज के स्टैंडर्ड रिकॉर्ड डिटेल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हुए। अगर तुम्हें चाहते हो कि रिकॉर्ड पेज पर अपॉर्चुनिटी का स्टैंडर्ड फील्ड इमीडिएटली अपडेट हो जाए तो सेल्सफोर्स को रिकॉर्ड चेंज नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा, रिकॉर्ड चेंज नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। इसके लिए रिकॉर्ड अपडेटेड अवेलेबल यूज़ करते हैं, इसको रिकॉर्ड चेंज अवेलेबल को यूज़ करता है। इसका डिफरेंस समझो, दोनों रिफ्लेक्स अपेक्स और नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेटेड अवेलेबल का डिफरेंस समझो। जो रिफ्लेक्स अपेक्स क्या करता है, मेरे LWC वायर में अपेक्स डेटा रिफ्रेश करो, ये बोलना चाहता है मेरे LWC वायर में रिफ्लेक्स डेटा अवेलेबल करो। और ये नोटिफाइड रिकॉर्ड अपडेट क्या बोलता है कि सेल्सफोर्स को बताओ कि ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। इस रिकॉर्ड को यूज़ करने वाला UI कंपोनेंट अपना डेटा रिफ्रेश करे। इस रिकॉर्ड ID को यूज़ करने वाला कंपोनेंट अपना रिकॉर्ड ID अपडेट करे। ये सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर।